وہ بہت ہی ضروری ہے آپ کے ہماری ترقی کا. اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے شیخ الجامعہ وائس چانسلر صاحب بہت بزی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ٹائم نکال کر آئے ہیں اور ہم آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے, انٹریکٹ کریں گے. آپ ہم یونیورسٹی کے الگ الگ شعبوں میں لے جائیں گے, بتائیں گے یہاں کا انفراسٹرکچر, یہاں کا وہ. اور یہ ایک بہت معیاری یونیورسٹی ہے, سینٹرل یونیورسٹی ہے, رائٹ. اور یہاں کی فیس بھی بہت ہی کم ہے. اگر آپ لوگ کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں جائیں گے تو جس کی لاکھوں میں فیس ہوتی ہے, یہاں ہزاروں میں 2000 3000 میں ہو جاتی ہے. اور یہاں پر آرٹس کے کورسز ہیں, ہسٹری, جغرافی, اکنامکس, پولیٹیکل لینگویجز ہیں, اردو, پرشین, عربک, انگریزی, ہر چیز. سائنسز میں ہیں, میتھمیٹکس, فزکس, کیمسٹری, باقی زوالوجی. اور جیسا جانتے ہیں اسکول لیول سے لے کر PhD تک ہمارے پاس تعلیم ہوتی ہے. تو آپ لوگ دیکھیے ہمارا کیمپس, ہمارا انفراسٹرکچر, اور یہاں ضرور آئیے اور یہ آپ کے مستقبل میں بہت کام آئے گا. شکریہ بہت بہت. ہمارے ساتھ آڈیٹوریم میں ویر وہ نام جو بولے ڈاکٹر دشامردن صاحب, اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی آ رہے. وومنس کالج کوٹھی کے نام سے ہم واقف ہیں. اس کا جو نیا نام دیا گیا ہے میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے اس کا نام بولنے نہیں آ رہا. میں بلا کسی تعلیم کے اجازت نہیں کوئی صاحب کو اجازت کروں گا. السلام علیکم. بینشین پر تشریف فرما پدم شری عین الحسن صاحب اور نجم صاحب, مصطفیٰ علی سروری صاحب, محرم صاحب اور مانو بین یہاں اسٹیج پر جو تشریف فرما, اور میرے عزیز ساتھیوں, الومنی ایسوسیشن کے میرے تمام عہدیداران اور طلباء اور طلبات, آج آپ یہاں جو بیٹھے ہیں یہ اس کا پورا چہرہ ہمارے پروفیسر عین الحسن صاحب, وائس چانسلر یونیورسٹی مولانا آزاد یونیورسٹی کو جاتا ہے. کیونکہ وی سی صاحب کا ہر بار یہی ایڈیا ہے کہ آج شہر کے بچے اس میں آنا چاہیے. تو اس وجہ سے ہم یہ مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شہر حیدرآباد کے تمام اسکول اور کالجز کے بچوں کو یہ یونیورسٹی کے بارے میں ہر چیز کو معلوم ہو, اور یونیورسٹی میں ہمارے پاس کیا کیا کورسز ہے یہ تمام چیزیں آپ کو بتانے کے غرض سے ہم یہاں لا رہے ہیں. اور یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے فیوچر میں آپ لوگ اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بنے, یہاں کے طلبا بنے. یہ ہماری کوشش ہے. یہ سب سیرا ہمارے وائس چانسلر پروفیسر عین الحسن صاحب کو جاتا ہے, جنہوں نے میرے کاندھے پر یہ ذمہ داری دی ہے کہ شہر کے بچوں کو یونیورسٹی دکھانا ہے. آج کئی ایسے مدرسے اور اسکول تھے جہاں ہم جا کر دیکھ رہے ہیں, وہاں پر یونیورسٹی کا نام تو بچوں کو نہیں معلوم ہے, جبکہ یونیورسٹی وہاں پر آ کے 29 سال ہو گیا ہے. تو کئی سارے ایسے ٹیچر بھی ہیں جو یہاں کے پاس آؤٹ ہے, یہاں پہ پڑھتے گئے ہیں ٹیچر. تقریباً شہر حیدرآباد کے جتنے اسکول ہیں ہر اسکول میں 2-4 ہمارے پاس آؤٹ وہاں سے ملیں گے. ہر ٹیچر وہاں کی یہاں کی پڑھی لکھی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام حیدرآباد کے تمام اسٹوڈنٹ یہاں آئے اور پڑھیں اور یہاں سے استفادہ حاصل کریں. کیونکہ جیسا کہ ابھی نجم الحسن صاحب بتائے, بالکل کم سے کم خرچے میں آپ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تمام کوششیں ہمارے وائس چانسلر صاحب کی ہے. تو میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آئندہ اور 5 سال اللہ تعالیٰ ان کو ایکسٹینشن دے تاکہ یہ یونیورسٹی اور دن کی ترقی کرتی جائے. کیونکہ ان کے بالکل مستقبل کے وقت میں آج شہر میں جہاں لوگ نہیں جانتے تھے ویسے علاقوں میں یہ یونیورسٹی کے بارے میں جان رہے ہیں. بعض تو ٹیچر ایسے ہیں جنہیں یونیورسٹی کا نام نہیں ہے معلوم, تو بچوں کی دور کی بات ہے. لیکن یہ بالکل کم وقت میں ایسا ہوا ہے کہ شہر کے کئی علاقوں میں یونیورسٹی کو جانے لگا ہے. تو میں دل کی گہرائیوں سے وائس چانسلر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ موقع دیا, آپ کو یہاں لانے کے لیے جو پرمیشن دیا, جو ایک بہترین کارنامہ ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہمارے زیادہ سے زیادہ حیدرآباد کے لوکل بچے آئیں گے. اور ایک میں انہیں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہاں کے لوکل بچوں کے لیے ریزرویشن کی بات کری, اور جو بچے ہمارے یہاں ایڈمیشن لینے کے لیے آئیں گے, جو
इंट्रेंस में अगर कामयाबी हासिल नहीं कर सके तो वैसे बच्चों के लिए इन्होंने एक स्पेशल पढ़ाई एक यहाँ पर मुकर्रर किया है जिससे आप लोगों को फायदा होगा। यही नहीं बल्कि आरटीसी का भी इंतजाम किया गया है जो 4 मीनार से यहाँ तक यूनिवर्सिटी को लाने के लिए आरटीसी डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखा गया है और उसमें ये निगोशिएशन चल रहा है कि जल्द से जल्द इस निगोशिएशन में कामयाबी हासिल करके वो भी काम शुरू करेंगे। और पीसी साहब ने ये भी हमारे से वायदा किया है कि अगर आरटीसी अगर 1000 रुपए पास से रखती है तो यूनिवर्सिटी 500 रुपए पैदा करेगी। ये बच्चों के लिए बेहतरीन कारनामा है, एक बहुत ही अच्छा काम है। तो मैं पीसी साहब का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया। शुक्रिया। साहब को जाना भी जल्दी है तो मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। शुक्रिया। खुदा बहुत शुक्रिया एवा साहब। एक छोटी सी जो वजाहत कि वो कोटा नहीं है, सुपर न्यूमरी सीट, यानी जितने भी सीट्स हैं अगर लोकल तेलंगाना के बच्चे आ रहे हैं एंट्रेंस क्वालिफाई कर रहे हैं तो सीट की जितनी गुंजाइश है उससे बढ़कर उनको दाखिला दिया जाएगा। वाइस चांसलर साहब की खिदमत में अर्ज करता चलूँ, आज के इस प्रोग्राम से सर विजिट उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के तहत 2800 बच्चों की तादाद पूरी होती है। पिछले 6 महीने के दौरान हमने 25वां ये प्रोग्राम है, 25 हफ्तों से जो है ये प्रोग्राम चल रहा है और ये सिर्फ आपकी सरपरस्ती की वजह से मुमकिन हुआ है। इसके तवील मुद्दत में मुझे उम्मीद है कि अच्छे नताइज निकलेंगे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे आज के इस प्रोग्राम को मुखातिब करें जो हमारा 25वां प्रोग्राम है जिसके जरिए से हमने 2800 बच्चों तक पहुँचने की कोशिश की है। कोटी वुमेन्स कॉलेज से जो टीचर चाहे उनमें से सर चाहेंगे कोई एक टीचर हमें मुखातिब करें और ऐसे ही डायरेक्टर साहब को तो हम सुन चुके। एमएस स्कूल से भी एक टीचर आएंगे। पहले मैं मेरे हिसाब से ये लोग देर से आए तो पहले एमएस वाले थोड़ा बात करें उसके बाद इनको भी समझ में आएगा कि वो बात करें। डॉक्टर अतीक सर आ रहे हैं। मोहतरम वाइस चांसलर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पद्मश्री जनाब सैयद ऐनुल हसन साहब, मोहतरम महमूद सिद्दीकी साहब, मोहतरम नजमुल हसन साहब, मोहतरम मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब और जनाब कुद्दूस साहब, अजीज तलबा, ये जो विजिट है मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ और बाद में शेखुल जामिया का शुक्र अदा करता हूँ कि उनकी फिक्र ने आज हैदराबाद के लोकल बच्चों के लिए बहुत बड़ा मौका फराहम किया है। ये 1998 में इस्टेब्लिश होने वाली यूनिवर्सिटी आज हैदराबाद में इतनी बड़ी नेमत है कि हम इसे नावाकिफ हैं। इस यूनिवर्सिटी में 120 से ज्यादा कोर्सेज चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ के तलबा का आप देखिए कितना बेहतरीन मेयार है। आपको भी सरवरी साहब बता रहे थे कैसे कैसे तलबा कितने बड़े बड़े मुकामात पर पहुंच चुके हैं। मोहतरम वाइस चांसलर साहब की ये कोशिश है, ये फिक्र है कि तलबा को मुस्तकबिल को संवारा जाए उर्दू यूनिवर्सिटी के जरिए। उर्दू यूनिवर्सिटी आपके मुस्तकबिल को संवारने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है। अब आपको ये तय करना है कि आप इस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हों और इस यूनिवर्सिटी को भी आगे बढ़ाएं और अपने मुस्तकबिल को भी आगे बढ़ाएं। इसी जिम्मन में एमएस एजुकेशन अकादमी इस कोलैबोरेशन के साथ, इस तवक्के के साथ वाइस चांसलर साहब के साथ बातचीत कर रही है कि तमाम तलबा का फायदा हो और तमाम तलबा को एजुकेट किया जाए, हायर स्टडीज के लिए उनको आगे बढ़ाया जाए। मैं इस जीवन में मोहतरम वाइस चांसलर साहब का बहुत ही मशहूर हूँ कि वो इस फिक्र के साथ कि इस यूनिवर्सिटी को हरा भरा रखना चाहते हैं, तलबा के मुस्तकबिल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ही मैं मशहूर हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, आपने ये मौका दिया, बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट स्कूल बेला गली दबीपुरे के बच्चे भी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा आज का प्रोग्राम मेरे हिसाब से बड़ी खुशी है कि वाइस चांसलर साहब की मौजूदगी में ये स्कूल के बच्चे भी हमारे पास आए हैं। अब मैं दरख्वास्त करूँगा कोठी
माफ कीजिएगा, वो पहले कॉलेज था तो मेरे जबान पर वही कॉलेज का नाम चढ़ा हुआ है। दरअसल उसको रियासती हुकूमत ने यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है, सिर्फ खवातीन की यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी से फैकल्टी वहाँ की आई हुई है, डॉक्टर एहतशामुल हसन मुजाहिद साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो हमें मुखातिब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। साइंसिंग पर मौजूद प्रोफेसर सैयद हसन वाइस चांसलर साहब और दीगर मौजूद शख्सियात और ख़ास करके डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब, मैं एक थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगा 5 मिनट, क्योंकि यहाँ पे कुछ तलबा भी मौजूद हैं, असातिज़ा भी मौजूद हैं। जैसे कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, ये जो हमारे लिए मैं समझता हूँ कि तेलंगाना की सरजमीन ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह का दिया हुआ बहुत बड़ा इनाम है। इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो ये सिखाता है कि इल्म जो है ये अंबिया की मीरास है, और जामिया, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के बगैर ये जो इल्म है ये हम तक नहीं पहुँच सकता। एक ऐसे दौर में जब उर्दू से तालीम हासिल करना और किसी यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखना हर एक के लिए नामुमकिन सी बात थी। वैसे वक्त में 1998 में यूनिवर्सिटी कायम हुई और उसने इत्तेफाक से मैं इस यूनिवर्सिटी का 2000 का तालिब इल्म भी। मैंने यहीं से डिस्टेंस से BA किया था, फिर उसके बाद यहीं से मेरा MPhil हुआ, फिर उसके बाद है ना यहाँ से है ना तो बहुत तालीम हासिल करके आज जो वुमेंस यूनिवर्सिटी के नाम से जो मशहूर है, वुमेंस कॉलेज के नाम से जो मशहूर है, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है और इसका नाम है वीरा नारी चाकली ऐलम्मा वुमेंस यूनिवर्सिटी। शॉर्टकट में हम इसको VCIWU कह रहे हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के तलबा भी यहाँ पे मौजूद हैं। असातिज़ा में डॉक्टर समीना मैम और डॉक्टर हौसिया मैम भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं है ना इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों के चंद बातें कहना चाहता हूँ मैं, कि जहाँ चाह वहाँ राह। ये हमारे पास जो है ना कहावत है कि जिसके दिल में आगे बढ़ने की चाहत होती है उसके लिए अल्लाह ताला क्या है ज़राए बना देता है कि भाई आपको रोज़ाना पढ़ना मुश्किल है तो डिस्टेंस की एजुकेशन भी दस्तियाब है। नहीं, आप रोज़ाना जाके असातिज़ा से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए है ना आपको है ना ये यूनिवर्सिटी भी दस्तियाब है, OT की यूनिवर्सिटी भी दस्तियाब है, मुख्तलिफ कोर्सेज भी दस्तियाब है। और ये यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा वगैरह हैं, मैं उनकी है ना थोड़ी सी शफ़क़त के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, कि आम तौर पे ये ख्याल किया जाता है कि जब भी उर्दू से हम MA करते हैं या MPhil करते हैं या PhD करते हैं, आमतौर पर जहन में ये ख्याल आता है कि भाई गालिब, मीर या फिर है ना आपके अखबार, नावल, अफसाने इसी तरह से है ना तहसील होती है। ऐसा नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा थे, चाहे वो प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब रहो, चाहे निकट मैम रहो, चाहे कोई और भी रहो, कि इनकी दूर अंदेशी ये थी कि जो तलबा जो है नई टेक्नोलॉजी आने वाले जो हालात हैं उससे हम आहंग होकर जो कोर्सेज करना चाहते हैं उनकी भी हिम्मत अफजाई की। यही वजह है कि मेरा MPhil में भी जो मकाला था वो साइबर टेक्नोलॉजी में उर्दू हैदराबाद के उर्दू अखबार मसाइल और इम्कानात था। इसी तरह PhD का जो मकाला था उसमें भी है ना साइबर टेक्नोलॉजी का उर्दू अदब और सहाफत में इस्तेमाल। ये यहाँ के असातिज़ा की दूरअंदेशी है कि तलबा जो है जो नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं या उनकी जो है ना उसमें दिलचस्पी है उसको भी है ना यहाँ पे फ़रोग़ देने की है ना कोशिश की गई है, जिसका नतीजा मैं तालिब इल्म से है ना आके आपके पास फैकल्टी की तरह खड़ा हुआ हूँ। ये यूनिवर्सिटी का ही है तो फेल रहा है। तो मैं तमाम हज़रात को और ख़ास करके ना मुस्तफ़ा अली सरवर साहब का और हमारे अपने जो है ना वाइस चांसलर साहब हैं इनका भी है ना तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। फिर एक मरतबा वीरा नारी चाकली ऐलम्मा यूनिवर्सिटी की तरफ से वीरा नारी चाकली ऐलम्मा वुमेंस यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा की तरफ से आपकी है ना खिदमत में बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। डॉक्टर एहतशामुल हसन मुजाहिद साहब 3 मरतबा रिपीट करे थे भी मुझे याद नहीं हुआ यूनिवर्सिटी का नाम, वुमेंस कॉलेज कोचिंग यूनिवर्सिटी। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा जायद सर से जो स्कूल के बच्चों के साथ आए हैं, क्योंकि इसी सर ने कहा कि पहले जो टीचर साथ आए हैं वो बात। आइए जायद सर।
जायद सर के साथ ये रबीलपुरे का एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, उसके बच्चों को यहाँ पर यूनिवर्सिटी के मुताबिक के स्टडी टूर पर लेके आए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी बात रखें। शहनशीन के तशरीफ फरमा डिग्नेटरीज, असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल तेरा याकूबपुरे का हेडमास्टर हूँ और मेरे साथ स्कूल के टीचर्स आए हैं और हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी है, तालिब इल्म भी है। ये टूर में जो अहम किरदार अदा कर रहे हैं वो है जनाब एडवोकेट एजाज कुरैशी साहब। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शख्सी इंटरेस्ट बताकर जो है हमको यहाँ पर इजाज़त दी है। और मैं हमारे बच्चों को भी यही कह रहा था कि आप लोग भी बहुत खुशनसीब है, आप स्कूल के दौर से ही जो है यूनिवर्सिटी का टूर में हिस्सा ले रहे हैं। आमतौर पर यूनिवर्सिटी में आने के लिए आपको 10th क्लास कामयाब करना पड़ता है, इंटर में जाना पड़ता है, उसके बाद डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप दाखिला लेते हैं तो तब आपको यूनिवर्सिटी में इजाज़त मिलती है। लेकिन आप लोग एक कुछ घंटों का ही सही, लेकिन आप ये टूर में हिस्सा लिए हैं, आप बहुत खुशनसीब हैं। बच्चों, हमको ये जहन में रखना है कि ज़िंदगी में हमको तरक्की करना है तो सबसे पहले हमको इल्म हासिल करना है। इल्म ऐसी रोशनी है जो तमाम अंधेरों को काटती है। बगैर इल्म के चाहे आपके पास कितनी दौलत क्यों ना हो, आप जिंदगी की रोशनी हासिल नहीं कर सकते। तो इल्म की रोशनी एक ऐसी वाहिद रोशनी है जिससे हर किस्म के अंधेरों को आप काट सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं, आपके घर वालों को तरक्की दिला सकते हैं, आपके ख़ानदान को तरक्की दिला सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने माशरे में जो बुराइयां हैं, कई किस्म की बुराइयां हैं, वो बुराइयों को दूर करने का आसान जरिया यही है कि हम इल्म हासिल करें। आज के दौर में इल्म हासिल करना आसान है, बशर्ते कि आपको उसमें शौक होना जरूरी है। शौक बहुत जरूरी है, बगैर शौक के आप इल्म हासिल नहीं कर सकते। आजकल इल्म हासिल करने के बहुत सारे जराए हैं। ये यूनिवर्सिटी में आप जो है जॉब करते हुए भी जो है आपका तालीमी सफर को जारी रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको डिग्री करने के बाद रोज जो है क्लासेस अटेंड करना है। डिस्टेंस एजुकेशन भी एक जरिया है। डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए से आप अपना जॉब जारी रखते हुए भी जो है इल्म हासिल कर सकते हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त लिए बगैर बस ये कहना चाहूँगा कि आप जो आपका इल्मी सफर है उसको जारी रखिए। आप हमेशा आखिरी सांस तक जो है हम इल्म हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 10th पढ़ लिए, अब लड़की है तो बस अब आगे पढ़ के क्या करना है, ऐसा नहीं है। चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, आपको इल्म जारी रखना है। चाहे आप माशी परेशानियों की वजह से आप इल्म जारी नहीं रख सकते हैं तो आप नौकरी करते हुए भी जो है करस्पॉन्डेंस कोर्स यानी